راست یہ چلیں گے وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صدق اللہ مولانا جی، میں آپ سب پاکستانی صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہمارے محترم ہائی کمشنر تشریف فرما ہیں، فاطمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور دوسرے افسران میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اقوام متحدہ کے جو سالانہ جو ہوتا ہے اجتماع، وہاں پر میں شرکت کر کے پاکستان انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں۔ میری وہاں پر مختلف ممالک کے سربراہان سے، وزرائے اعظم سے ان سے ملاقات ہوئی، برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی وہاں پر گفتگو ہوئی، اور بنگلہ دیش کے جو ڈاکٹر یونس ہیں انٹرم گورنمنٹ کے ہیڈ، ان سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ طیب اردوان صاحب سے جو میرے بھائی ہیں، ترکی کے صدر، عراق کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کویت کے جو ولی عہد ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے جو زعماء ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور بڑی اس میں مفید باتیں ہوئیں، اور پاکستان اور اپنے ان دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی وہاں پر ہم نے بڑی مؤثر گفتگو کی۔ میں نے بطور منتخب وزیر اعظم پاکستان کے اپنے تائیں ایک ہمبل ایفرٹ کی کہ پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے وہ میں پوری دنیا تک پہنچاؤں، چاہے وہ فلسطین میں اور غزہ میں جو ظلم اور بربریت کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح لبنان میں جو حملے کیے گئے ہیں اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی، اور یعنی خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور معصوم لوگوں کا جو لہو بہہ رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے فی الفور، اور عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے، اور ایک جو آزاد ریاست ہے فلسطین کی، وہ اس کا قیام فی الفور ہونا چاہیے۔ مگر جنگ بندی اور اس سے بھی پہلے فلسطین کو نمائندگی UN میں، اس کو فی الفور ان کا نمائندگی ملنی چاہیے۔ اسی طرح کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے میں نے تفصیل سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح کشمیری مائیں، بیٹے، بزرگ، نوجوان، بچے اور بچیاں کس طرح وہ اپنی آزادی کی جنگ 100 سال سے لڑ رہے ہیں، اور کس طرح کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، مگر ہندوستان کے جبر، ہندوستانی افواج کے جو جبر اور ان کا جو ظلم ہے اس کا انہوں نے بھرپور ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور آج تک کرتے چلے آئے ہیں۔ اور جو ایک چھوٹی موٹی ان کو ایک رعایت تھی انڈر آرٹیکل 370، وہ بھی اگست 2019 میں مودی سرکار نے چھین لی ان سے۔ تو یہ UN کی قراردادیں، اقوام سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، اور ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ، اور پوری دنیا کی مذمت، اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ ان کی پوری سپورٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ
यहाँ पर जबर और जुल्म अब ख़त्म होना चाहिए और कश्मीरियों को भी उनका हक मिलना चाहिए प्लेबिसाइड का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का। इसके साथ मैंने पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो चैलेंजेस हैं उसका ज़िक्र किया, ख़ास तौर पर जो हमारे माशी चैलेंजेस हैं। मैं यहाँ पर तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कहूँगा कि पिछले 16 माह में भी अल्लाह ताला ने हमें ये इस्तेदाद बख्शी कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया और उसकी तमाम शुरुआत उससे पिछली की थी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पहुंच चुका था और अब ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से और इज्तिमाई काविशों से डिफ़ॉल्ट से न सिर्फ हम बचे बल्कि एक स्टैंड बाई एक एग्रीमेंट भी हुआ और उसका आज अल्हम्दुलिल्लाह फल ये मिला है कि हमारा एक जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम वो 25 तारीख़ इसी महीने वो मंजूर हुआ $7 अरब का। उसी दिन मेरी IMF की जो MD हैं क्रिस्टलिना, उनसे मुलाकात हुई। उसी दिन मेरी वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात हुई और दोनों ने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही मस्बत उन्होंने बयानात दिए और कहा कि पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बहुत ही गहरे समुद्रों में जो पाकिस्तान माशी तौर पर हचकोले खा रहा था उससे निकल चुका है। अब स्टेबिलिटी और तरक्की की तरफ अब इंशाअल्लाह हम रवा दवा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आलमी इदारों का ये बयान आज भी मैंने पढ़ा है, जो नेथन है इनका IMF का जो एक नुमाइंदा, उसका एक आर्टिकल छपा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान अब इस्तेकाम और माशी तरक्की की तरफ अब रवां दवा है। आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई इस वक्त 9.6% पे है, जो कि इसी महीने पिछले साल 32% पे थी और स्टेट बैंक ने अभी पॉलिसी रेट 2% कम किया है, जो कि अब 17.5% पे आ चुका है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो आम अशाए खुर्द-ओ-नोश हैं उनकी कीमतें भी मुस्तहकम हो रही हैं और वो जो बोझ था, बदतरीन महंगाई का बोझ गरीब आदमी को जिसने अपने बोझ तले कुचल दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है और माशी तरक्की की तरफ हम इंशाअल्लाह बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। बेपनाह मेहनत, बेपनाह कुर्बानी, बेपनाह पसीना बहाना होगा। जो हमारा जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना होगा। जो लोग पहले टैक्स देते हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्सों का बोझ ला देंगे, ना मुल्क तरक्की करेगा, ना टैक्स बढ़ेंगे, ना माशी तरक्की होगी। हमें टैक्स बेस बढ़ाना होगा और अशराफिया जिसकी ज़िम्मेदारी है, आज तक अगर कुर्बानी दी है पाकिस्तान में तो आम आदमी ने दी है, चाहे वो महंगाई हो उनके ऊपर बोझ पड़ा, चाहे वो टैक्स लगे उनके ऊपर बोझ पड़ा, चाहे दूसरे अखराजात उनके ऊपर बोझ पड़ा। आज आम आदमी 77 साल कुर्बानी देता है। आज कुर्बानी देने का वक्त अशराफिया का है। जो हैव्स जो हैं, हैव नॉट्स तो बेचारे महंगाई के बोझ तले पिस गए और इंशाअल्लाह उनको अब उसमें से निकालने का वक्त है। और जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है उनका आज ये फ़र्ज़ है और मुझे यकीन है कि वो बढ़ चढ़ कर इज़हार और कुर्बानी का मुज़ाहरा करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हाथ बढ़ाएंगे। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आज फिर कहना चाहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम ये पाया तकमील तक ना पहुँचता अगर हमारे इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया,
इंतहाई बरादर मुल्क यूएई, मुत्तहदा अमारात और इंतहाई दोस्त मुल्क, बाएतमाद दोस्त मुल्क चीन अगर इसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन ना करते तो मैं आज फिर इन तीनों ममालिक का ख़ुसूसी तौर पर और बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका अमूमी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मुश्किलात से निकालने के लिए बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ मैं इस IMF प्रोग्राम की जो तकमील के जो मराइल हैं उसमें वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब, चौधरी इमदादुल्लाह बुसाल साहब, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब और फातमी साहब बैठे हैं। इनकी इसमें इनकी कोऑपरेशन है। चीन में हमारे जो सफ़ीर हैं और पाकिस्तान में जो चीन के सफ़ीर हैं और इस तरह दर्जा बदर्जा सब ने हिस्सा डाला है। और इसके साथ ये बात नामुकम्मल और अधूरी रहेगी अगर मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लूँ, जिन्होंने ज़ाती तौर पर इनमें बेपनाह काविशें की हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि उन्होंने ख़ुसूसी दौरा किया बरादर मुल्क का और जाकर IMF के हवाले से बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इज्तिमाई काविशें हैं जिसको मैं कहता हूँ टीम पाकिस्तान, जिसको मैं कहता हूँ कि टीम वर्क, जॉइंट वर्क, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये IMF का प्रोग्राम हुआ। लेकिन ये बार बार नहीं होगा। आई होप एंड प्रे टू गॉड दिस विल बी द लास्ट टाइम। मुझे इत्मीनान है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की शबाना रोज़ मेहनत से, हुकूमत पाकिस्तान की मेहनत से हम इंशाअल्लाह अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। मैं IMF का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पे एतमाद किया और अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि हम आज मुश्किलात से निकल कर तरक्की की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। एक एक पाई कौम की हमें बचानी होगी, अखराजात में कमी लानी होगी और आवाम को सहूलतें उनकी दहलीज़ पर पहुँचानी होंगी। तब जाकर इंशाअल्लाह ये हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा जिसके लिए लोगों की आंखें 77 साल से तरस गई हैं। मैं अपने आप से पहले मुखातिब हूँ और फिर पूरी कौम से कि अब वो वक्त आ गया है कि हम मेहनत को हम सिक्का राजुल वक्त बनाएं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई पहाड़ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।